Hello everyone. Good evening. Good evening. Good evening everyone. How are you all? कैसे हैं सभी लोग? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पहले से ही काफी सारे लोग वेट कर रहे थे. So, are you guys feeling excited? Yes or no? Okay, so let me introduce myself. I'm Shubham Srivastav, educator at Unacademy and a corporate trainer for aptitude and reasoning. And let me introduce my co-host for today, Miss Anjali Jain. Hello, Anjali Good ma'am. everyone. How are you all doing, guys? I hope you all are as excited as we are. Nita, I am Anjali Jain and I work as a corporate trainer for communication skills in a reputed college in Bhopal. Guys, I have more than 3 years of experience in HR and recruitment in banking sector. So let us start with our session of the day, guys. As you all know, हम लोगों ने सबने सुन रखा है कि a book is not judged by its cover. Do you think it is true? No, indeed it is wrong. Beta, a book is judged by its cover these days. So आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके स्किल सेट दिखाने में, आपका एक अच्छा पोजीशन बनाने में इन फ्रंट ऑफ द अदर्स. सो बेटा, communication plays a very important role in overall personality development. So for this matter, let us introduce you all to our first guest of the day, Mr. Anish Saxena sir. He is an NLP master practitioner and has over 2 decades of experience in communication skills and personality development. Welcome, sir. Can we have him on screen, Hello. guys? Yes. Hello. Hello, everyone. How do you do? Hello, Shubham sir. Hello, Anjali ma'am. How are you? Hello, sir. Welcome. We are good, wonderful. Thank you. Right. Sir. So we'll be talking about communication skills basically, right? Or we Yes, will sir. be taking the language development part also. You have been getting into the survey also, right? So might be having the questions of the students. Then we'll have an interaction rather than having a monologue. Of course, a communication, a conversation between people goes a long way, more than just an interview or just a normal video, sir. So we are going to have a Sure. very good conversation over here today. Sure. Sir, please. No, it's a treat having you all. Right, ma'am. Right, ma'am. We can continue. Sure, sir. Right. Shubham, sir, you're not audible. Am I audible now? Yes. Yeah. Okay. So before wasting time, let me introduce our second guest, Professor Deepa Kukreti ma'am. So she She is a senior academician, expert in teaching ESL and training for IELTS, and she has been corporate trainer for communication skills for a long time. Hello, welcome, ma'am. Welcome to Learn Eureka. Hello, everyone. A very warm good evening, and hope everyone is keeping safe in the COVID times. Glad to be a part of this team. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. We are glad you're here. I'm glad to be a part over here. Indeed. So, on behalf of Learn Eureka, I welcome you all. एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को भी मैं वेलकम करता हूँ लर्न यूरेका पे. और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो सेशन है, दिस इज द फर्स्ट सेशन, फर्स्ट कॉम स्किल समिट. ओके, तो कॉम स्किल समिट का जो आइडिया था वो आइडिया यही था कि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इनफैक्ट काफी सारे लोग होते हैं जो कॉम स्किल्स में काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, या इंग्लिश एज अ लैंग्वेज उसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, राइट. तो आज के जो समिट का जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम इस टाइप की कुछ चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. और इसके लिए कहीं ना कहीं, जैसा कि आपको पता है कि जितने लोग टच में थे उन सभी लोगों को एक गूगल फॉर्म, एक सर्वे हम लोगों ने पहले से कराया था एक वीक पहले, जिसके थ्रू काफी सारे आंसर्स मैम एंड सर हम लोग को मिले हुए हैं. वो आपके लिए रेडी हैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे. मैं स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है.
तो आप यही समझो कि ये मेरे डाउट्स हैं। तो काफी सारे Sure. ऐसे डाउट्स हम लोगों को मिले हुए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, जिनको मैंने सर एनालाइज करा। तो कुछ जी चीजें तो ऐसी हैं जो कि पहले सेग्रीगेट करने के बाद आधे डाउट्स कहीं ना कहीं कॉम स्किल से रिलेट करते थे, और आधे डाउट्स कहीं ना कहीं इंग्लिश एज अ लैंग्वेज से रिलेट करते थे, उनकी वर्बल एबिलिटी से रिलेट कर रहे थे। तो अगर कॉम स्किल के बारे में मैं बात करूं, तो काफी सारे जो लोगों का था, लाइक स्पोकन, अगर हम लोग पहले एक टॉपिक उठा सकते हैं, तो जैसा मुझे देखने में आ रहा था कि उनके प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं जो रिलेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से। अब खैर नॉलेज तो एक चीज है ही कि अगर आप नॉलेज ही नहीं है किसी लैंग्वेज का, तो फिर तो आप उसको यूज कर ही नहीं पाओगे। तो उसके अलावा मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे अलग से एक तरीके से सेग्रीगेट करी है। तो पहला, मैं बिल्कुल। स्टूडेंट्स के बिहाफ पे अनीस सर से ये क्वेश्चन करना चाहूंगा। जी सर। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है, अराउंड आप समझ सकते हो 30 to 40% जो हमारी ऑडियंस थी, उनका ये क्वेश्चन आया था कि सर बड़ी हेजिटेशन होती है, स्टार्ट ही नहीं कर हाँ, पाते। राइट राइट बैकग्राउंड राइट वो राइट। उनका हिंदी मीडियम वाला रहा है, उन्होंने स्टार्ट ही अभी करा है। तो हाँ, इसके लिए क्या करा जा सकता है? देखो शुभम सर, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा आई कैन अंडरस्टैंड हाउ दे फील। देखिए, ये एक पूरा के पूरा ग्लिच है। होता यह है कि उनको लगता है कि जो लोग इंग्लिश में बात कर लेते हैं उनके सामने हम लोग थोड़ा सा इंफीरियर, राइट सर। अब यस सर। होता क्या है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत फ्रैंकली बताता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंसेस किस टाइप के हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट लैंग्वेज, इट इज अबाउट द अदर एरियाज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को सबसे पहले जब एस्केलेटर पे चढ़ने को मिला था, तो इट टुक अराउंड 15 मिनट्स टू जस्ट टू राइड ऑन द एस्केलेटर। और मेरे पास से छोटे छोटे बच्चे निकल के जा रहे थे और वो बहुत कंफर्टेबली चले जा रहे थे। अब ऐसे में जब मैं कोई नए सिनेरियो में जाता हूं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। सपोज यू आर गोइंग ऑन टू से एयरपोर्ट पे जाते हैं, हम लोगों को कस्टम नहीं मालूम होता है वहां पे। बाकी लोग हम लोगों को गॉडी देखते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि दे आर सुपीरियर टू अस, और पूरा के पूरा ब्लॉक वहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा शुभम सर, इन लोगों का ही प्रॉब्लम नहीं है। सपोज वी आर गेटिंग ओवर हियर, हम लोग यहाँ से कहीं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके किसी कंपनी में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां पे जिस तरह का कम्युनिकेशन चलता है, हम लोगों को भी कभी कभी ऐसा लगता है बीइंग ए सीनियर पर्सन कि देखो जिस तरह से यंगस्टर्स कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। अगर आप प्रोजेक्शन बना के चलते हो, है ना, ये प्रोजेक्शन की बात है। यस कुछ सर। अंदाजा लगाइए शुभम सर, कुछ अंदाजा लगाइए कि ये परंपरा कहाँ से चल रही होगी। फिर मैं उसको थोड़ा सा एलोबोरेट करता हूँ। कुछ अंदाजा है कि ये परंपरा कहाँ से चल रही है? मे बी शायद कॉलोनियल टाइम, या शायद उससे भी पहले। दैट्स इट, दैट्स इट। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए, कहीं पे भी जब हम लोग आज से इतिहास ढूंढते हैं, जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे और उनके साथ में जो लोग काम करते थे, दे वो टॉकिंग इन इंग्लिश, ठीक है, टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते थे। एंड दीज ब्रिटिशर्स दे नीड पीपल जो इंग्लिश समझ पाए और इंग्लिश में थोड़ी बहुत कम्युनिकेट कर पाए। तो दे वर द फेवरेट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स वर द सरकार ओवर हियर, ठीक है ना। तो अब उन लोगों के साथ में जो लोग रहते थे, बाय डिफॉल्ट वो भी अपने आप को सरकार समझने लगे, एंड देन दे स्टार्टेड मेकिंग द पीपल फील बिलो देम। अब ये 300-400 सालों से चला आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीन में भी आ गया। और इसलिए हम लोगों को लगता है दैट द पीपल हु आर स्पीकिंग इन इंग्लिश आर सुपीरियर। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग इस फीलिंग को छोड़ दें दैट if I am not understanding, if I cannot speak in English, we are inferior. लैंग्वेज है ये, इसका इंटेलेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सर, एक छोटा सा जोक मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, अगर यस आप सर। परमिट करें तो। जी सर, जी सर, जरूर। इट्स ऑल अबाउट संता कि इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड से जब वापस आए तो अपने कॉलोनी के अपने लोगों को, अपने शहर के लोगों को बहुत डांटने लगे। बोले कि हम लोग बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, इंग्लैंड में तो बच्चा बच्चा इंटेलिजेंट है। मुझे बोला कि कैसे हो गया ये, आपको कैसे मालूम चला कि इंग्लैंड में बच्चा बच्चा इंटेलिजेंट है? बोले बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है। देयर इज नथिंग टू डू विथ इंटेलिजेंस। अगर हम लोग भी एक ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े होते जहां पे सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते, तो हमको भी आ जाती। इंटेलिजेंस से कुछ लेना देना नहीं है। डोंट टेक इट एज ए सब्जेक्ट, टेक इट एज ए लैंग्वेज रहता। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि उसको लैंग्वेज जैसे ले लें, उसको सब्जेक्ट जैसे ले ही नहीं। इंफीरियोरिटी से अपने आप को बाहर निकाल लें, और ट्राई हैविंग द प्लेजर ऑफ इंग्लिश। यस सर। सर जी। ओके।
बढ़िया सर। सर कहीं ना सर कहीं सर ने एक्सप्लेन एक चीज, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जिस पर्सपेक्टिव को मैं देख पा रहा हूँ, कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं एज अ पर्सन अगर मैं बात कर रहा हूँ और मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ सामने वाले को देख के कि उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, जैसे अनीश सर बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं या अंजलि मैम बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अंजलि मैम को सुपीरियर, खुद को इंफीरियर देखने लग जाता हूँ। तो अगर आप इस माइंडसेट को लेकर जी रहे हो तो कहीं ना कहीं ये एक बिल्कुल सही बात है कि ये एक गलत ही चीज है, मतलब एक गलत पर्सपेक्शन, सॉरी, गलत पर्सपेक्टिव को लेके आप जी रहे हो फिर। लेकिन सर दूसरा क्वेश्चन ये इनफैक्ट मैं दीपा मैम से पूछना चाहूंगा कि मान जी लो फॉर एग्जांपल मैंने इस पर्सपेक्टिव को अपना लिया कि हाँ, सामने वाला अगर इंग्लिश बोल रहा है तो वो मेरे से सुपीरियर नहीं है, लेकिन मैं एज अ इंजीनियर आज किसी भी फील्ड में मैं जाता हूँ और मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और मेरी अब मजबूरी है कि वो काम मेरे को करना है और उसमें इंग्लिश के बिना मेरा कुछ भी काम नहीं होने वाला। अब हमें एज अ लैंग्वेज ही उसको सीखना स्टार्ट करना है, ठीक है? तो अब कहीं ना कहीं हमारी यहाँ से एक मजबूरी भी बन गई कि हमको इंग्लिश सीखना स्टार्ट करना है। तो मैम इस चीज के हेजिटेशन को अब हम कैसे दूर करें कि जो बचपन से भरा हुआ है ये चीज तो चलो हो गया, अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ और अभी भी मैं थोड़ा कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रहा हूँ। अब मजबूरी तो है, ये मेरे को भी समझ में आ रहा है, ये सबको पता है कि आज उसके बिना कोई काम नहीं होने वाला है। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं उस चीज को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए? Okay, I'll take it a little back from here. You know, हमारे पास एक बायस होता है कि हम हमेशा फर्स्ट लैंग्वेज या जिसे हम मदर टंग कहते हैं उसके लिए एक फॉन्डनेस होती है. We have a habit of giving it a priority and we have our own comfort zone related to it. Okay. Yes, ma'am. Now, when we talk about English, now we always treat English as a second language. In India, it is a second language. Agreed? Now, when ma'am. we say second language, there is a differential treatment of the language, which is first language and the second language. The first language is usually an acquired language. When we say acquired language, that means it is from the surrounding that we have absorbed without even realizing the nuances of the language. Okay. Now, when we talk about English, what is happening is we learn that language and not acquire it. There is difference between the two things. Try and understand this very technically. I'm using two words. One is language acquisition and the other is language learning. When we Yes, say ma'am. language learning, that means we are having a step-by-step formula towards getting the nuances of that particular language, right? Now, when you are saying these two things, do you get to realize that we are looking towards English as a formula-based study, which is where it becomes a subject. It is no longer a language. It is not a language as a part of culture. Language is a part of culture that we absorb from the environment. And when we talk about the comfort in a particular language, it has more to do about our thought process being developed in that particular language. Now, Very when true. we talk about acquisition, what is happening is without even getting to realize what means what, we have already seen and realized certain words and context in a certain manner whereby we don't have to make extra efforts to use that particular language, and we are very comfortable in that particular language, which is our mother tongue or what you call as the first language, right? Now let's talk about the second scenario of the second language, which is English over here. Now, as your question goes, it says that we have landed in a situation where we need English. So we have landed in this situation where we need English to be developed to a certain level. Now, let's see the process of learning language first. Now, whether you learn a language as a first language or a second language, the process still remains the same. The researchers have proved that. Okay. Now, how do you learn the first language? We learn the first language first by listening, copying it without making any sense. Okay, we mime it. A small kid keeps on repeating certain words without making any sense. It is later through that process of repetition that we get to understand the meanings in the contextual sense. Okay, so that listening has eventually led to what? Speaking, which is your second skill. Now, eventually we send that child to school
where this sound that that child was using all this while gets a kind of pictograph, which is an alphabet of that particular language, right? So we are leading that child now from listening, speaking, now it comes to reading. And while the child learns to read and replicates the same, it becomes your final skill, which is writing. Am I clear about this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So when we talk about English, I would say, like, start from the scratch. Try and understand the importance of listening. If you can't listen good and you're not ready to repeat without making sense for a while, without compromising your ego for a while, and always contradicting your earlier learned language and comparing it all the while with the new language, you'll always be in a problem. Now, if you want to learn English, the first thing that you need to do is involve yourself into conscious listening and then repeating consciously and without any ego involved. Okay? Now, once we Yes, say ma'am. that, that continuous thing must lead you to reading certain things in the language. You cannot actually leave these steps and assume that, you'll be good at writing without having good listening. Yes, So ma'am. you have to go through that cycle, this complete cycle. So if you're really consciously interested in doing this activity of developing your English skills, you'll have to go through this entire procedure of developing good listening, trying to repeat the thing, mime it to the level where you feel that, you are speaking like a native, or maybe, at least to the level where people can understand you. And then start with good amount of reading good stuff. Again, when we say good stuff, something which is enriching. Why enriching? Because unless you have content to speak, unless you have the words in that particular language, unless you have an exposure with the vocabulary, you really can't experiment much, which is where there is a problem that we tend to be turning ourselves again and again to very basic sentences, and we talk about hesitation, we talk about the conflict with the better off speakers, and we can't understand a lot of it. And then there are further nuances in the language, like the idioms, phrases, figurative uses of the things, which may come only over the period of time when you have done good amount of conscious reading. And once you've done that, you have a lot of knowledge with you, which you can again replicate in the form of writing. So when we talk about, developing your language skills at this stage, try and understand that this process has to be addressed, and there is no shortcut of n number of hours that you can give it to. Have I answered Yes, that? ma'am. Yes, मैम, डेफिनेटली काफी कुछ Definitely. चीजें ऑलरेडी मैम ने क्लियर कर दी हैं. ठीक है, इनफैक्ट कुछ और क्वेश्चंस थे मैम जिनका आंसर आप ऑलरेडी दे चुकी हो. जो इस Okay. आंसर के थ्रू आपके काफी सारे क्वेश्चंस और भी थे, जैसे कि एक क्वेश्चन सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन ये मेरे पास आया था कि जब हम सुनते हैं तो हमें सब समझ में आता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं. वो फिर समझ में नहीं आता एग्जैक्ट वर्ड कहाँ पे पुट करना है, एग्जैक्ट सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, ये चीजें कहीं ना कहीं हम ब्लैंक हो जाते हैं. जबकि रीडिंग का अगर पार्ट करा जाए तो हम समझ लेते हैं. लाइक अगर हम लोग किसी को सुन रहे हैं तो समझ लेते हैं, लेकिन जब बात आती है स्पीकिंग की, तो स्पोकन इंग्लिश में वहां पे आके कहीं ना कहीं आप कह सकते हो लाइक लैक ऑफ प्रैक्टिस उसका एक रीजन हो सकता है. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो मैम उसमें आंसर उन्होंने बच्चों ने खुद ही दे रखे थे. वो खुद ही, जैसे कि एक मेरे को याद आ रहा है क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था. वो क्वेश्चन क्या था कि सर मैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ में बात कर लेता हूँ, लेकिन मेरे से एज में बड़ा कोई इंसान आ जाए, कोई प्रोफेशनल अगर कोई इंसान आ जाए, मैं उससे बात नहीं कर पाता हूँ. राइट, तो ये चीज इसके ऊपर अनीस सर अगर आप थोड़ा सा इसको आप अगर आगे एक्सप्लेन करना चाहें तो. सर यू आर नॉट ऑडिबल. Am I audible now? यस सर, Yes. नाउ यू आर ऑडिबल. राइट. देखिए उसमें क्या होता है शुभम सर, इसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है. यस और सर. इसमें इंग्लिश का कुछ लेना देना ही नहीं है. देखिए क्या होता है कि आई हैव बीन इनटू कंडक्टिंग मेनी सेमिनार्स एंड ऑल.
तो उसमें जब एक एक्सटेम्परे की बात आती है या जैम सेशन की बात आती है कि आप 1 मिनट के लिए यहाँ पे आइए और अपना एक टॉपिक के ऊपर बात करके और चले जाइए, तो जैसे ही मैं किसी स्टूडेंट को कॉल करता हूँ, जैसे ही किसी कैंडिडेट को कॉल करता हूँ, वो बोलते हैं नहीं सर अभी थोड़ी देर से 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, राइट? ये हमेशा ही है, ये हमेशा ही होता है। अच्छा, उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, 2-3 बार ऐसा बोल चुके हो कि 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, तो आंसर ये आता है कि सर इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे। तो आई गिव देम ए चांस कि एक काम करो, इंग्लिश में मत बोलो, चलो हिंदी में बोल दो, स्टेज पे आओ, Yes, sir. हिंदी में बोल के चले जाओ, रिजल्ट इज द सेम। सर अभी नहीं, 2 मिनट बाद आते हैं। तो एक्चुअली में ये इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और मुझे जहां तक अंदाज है, दीपा मैम, अंजलि मैम, आप इस बात से एग्री करेंगे कि एक हमारे बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक फोबिया चलता रहता है, दैट इज फियर ऑफ रिजेक्शन। ये हमेशा ही चलता Yes, रहता है sir. कि Exactly. अगर मैं स्टेज के ऊपर आया और लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या। और उसमें से एक बहाना, बहुत सारे बहानों में से एक बहाना ये रहता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो इट्स नथिंग टू डू विद इंग्लिश, इट्स ए साइकोलॉजिकल प्रेशर दैट इज नॉट अलाउइंग यू टू स्पीक अप। ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये लैंग्वेज का पार्ट है ही नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, यू विल हैव टू फेस, अभी नहीं तो बाद में फेस तो करना ही है। अच्छा, और हेजिटेशन हटाने का यही एक तरीका होता है, यू कंटिन्यू विद द एक्टिविटी। आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, शुरू में होगा, ये कंफर्म करके चले जाओ, ये फियर ऑफ रिजेक्शन को हटा के जाना पड़ेगा। आई डू रिमेम्बर व्हेन आई माइट बी ए किड, 5th क्लास में या 4th क्लास में होगा, when I was taken down to the stage and I was asked to speak in front of a crowd of say around 3000 students. वो असेंबली थी, स्कूल की असेंबली थी। तो आई वाज डम स्टक ओवर देयर, मैं वहां पे एक शब्द नहीं बोल पाया था क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही दिख रही थी। अच्छा शुभम सर, ऐसे में क्या लगता है कि जितने बार भी हम लोगों को देखते हैं और कोई किसी भी वजह से हमारी तरफ देख रहा है, कोई किसी भी तरह Yes, से sir. मुस्कुरा रहा है, हमको ऐसा लगता है कि हमारी ही वजह से मुस्कुरा रहा है। ये परसेप्शन Yes, हम sir. लेके Yes, ही sir. चलते हैं और ये ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजी है सर, कि अगर आप एक जगह पे खड़े हुए हैं, आपके सामने अगर 2-3 लोग खड़े हुए हैं, अगर वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आप अननेसेसरली पर्सनल हो जाओगे। तो ये चीजें Yes, sir. हमको, Great, आई sir. कीप ऑन आस्किंग द कैंडिडेट, मैं कैंडिडेट से पूछता हूँ कि हेजिटेशन कहाँ कहाँ होना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप शॉपिंग करने के लिए गए, आपको हेजिटेशन होना चाहिए ना, दुकानदार से आप पहली बार मिल रहे हो, आप जानते नहीं Yes, हो sir. उसको, तो आपको हेजिटेशन होना चाहिए ना। इन एक्सट्रीम केसेस वी आर फाइंडिंग सच काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो। एनएलपी सेज कि आप अपने दिमाग के पीछे या परसेप्शन बना के ही चलते हो कि मैंने कुछ बोला तो गलत हो जाएगा। इसके लिए बेहतर है कि आप एक स्क्रिप्ट बना लें, उसको प्लान कर लें, पॉइंट वाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद में कंडक्ट करें, बेहतर है ये। Yes, sir. It takes a long time plus hard work to have an extempore as we have been doing अभी, जैसे मैं कर रहा हूँ, दीपा मैम आप कर रहे हैं, अंजलि मैडम कर रहे हैं। It takes a long practice, एक दिन में नहीं हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दें, Yes, होगा sir. सर। Anjali ma'am. Yes, sir. Okay, so ma'am, I have a question for you. This is the most commonly asked questions कि हम vocabulary को कैसे develop करें? Suppose if a person is having a great confidence level, his voice is audible, his tonality is wonderful, but he does not know what to say, what words to use in order to create a good impact amongst the audience or the crowd. So how to do the vocabulary building? If you want a very realistic answer, I would say do rigorous reading. If you're not good at reading, see, I can give you a lot of shortcuts, but that doesn't really work. You know, a very realistic answer would be if you can indulge yourself into a good amount of reading and a quality reading. I would say quality reading because not just any reading is going to help you have a good kind of vocabulary. And be ready. When I say all these things, you know, you could have, if you realize, you know, in my previous answer also, I've consistently been using the term consciously. Yes. If you're doing something consciously, you're aware that you're doing it, okay, you're bound to get good results. So if you're focused on developing vocabulary, you'll be very focused on acquiring new words, and you'll be focused on experimenting them on the occasions whenever they fall in. Yes. What happens is we tend to read and we
Sorry for the interruption, guys. Ma'am, you can continue. See, we tend to have a lot of words, and we are in a habit of reading contextually. We tend to ignore the importance of a lot of words. We don't carry them forward just because we are focused more or less on the meaning, the final meaning, or the essence of whatever we are reading. These are the times when we have actually skipped on what we call as the vocabulary nuances. Now, if you are focused on developing vocabulary and you are really keen on developing them, you would be focused on what new words are appearing, in what context have they been used this time or the next time, and you would be ready to experiment those words in those contexts that you have observed. Once you use a word in a certain context, it is this time that you get an endorsement through the acceptability in the conversation that helps you absorb that particular vocabulary. See, simply knowing a word is not going to help you have the confidence to use it again and again. You'll have to experiment it. You'll have to use it. Once you use it and the other person understands the context in the same light as you wanted to say, that is the level when you have actually acquired that vocabulary. Okay. So when you're talking about having a good vocabulary, Absolutely it's true. not just about reading it. Reading it consciously is the first thing that I would assert on. Read it consciously. Be ready to note it down and again replicate it whenever it is possible for you. And when you replicate it, observe for the acceptance of that particular vocabulary. That is the time that you're one with that word. Indeed, ma'am, this is true. So, guys, as you have heard, ma'am, both the answers, we have come to a very good conclusion that continuous and conscious practice of LSRW activities will actually help us to build our communication, to improve it, and to be very confident enough to speak it out in front of anybody, guys. So, I would like to tell you LSRW क्या होता है, sir. अच्छा, guys, let me tell myself what is LSRW. बेटा ये होता है listening, speaking, reading and writing activities. अगर हम ये करेंगे तो for sure हमारा communication बहुत ही अच्छा हो सकता है. Sir, my next question is for you. As you are an NLP practitioner as well, so हमारा question है कि अगर life में normally बहुत positive रहते हैं हम, we are an optimistic person in nature. But what happens when we go out in the crowd? काफी negativity आ जाती है. We get influenced by the crowd. और हम पे कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है. We tend to speak what we hear. So how to actually overcome that? How to work upon it, sir? सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है अवॉइड नेगेटिव पीपल. ये हमेशा हर व्यक्ति यही बोलता है. दूसरा ये रहता है कि या तो आप अवॉइड करते हैं और ये रेडिली पॉसिबल कम हो पाता है दैट यू आर अवॉइडिंग ऑल द नेगेटिव पीपल, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वी विल बी द लास्ट पर्सन ऑन अर्थ जो पॉजिटिव रह पाएंगे. ऐसा भी होता है समटाइम्स वी आर गेटिंग आल्सो गेटिंग नेगेटिव. लेकिन ये क्या होगा, इस तरह का संक्रमण हम लोगों को नहीं फैलाएं, इस तरह का इन्फेक्शन हम लोगों को नहीं फैलाएं. इसलिए हमेशा हैव एन एसोसिएशन विद पॉजिटिव पीपल, हमेशा. और इसी से ये होता है कि इट्स अ डेली हैबिट, इट्स अ कांस्टेंट प्रैक्टिस. एक दिन में नहीं हो जाता है. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. शुभम सर, आप एग्री करेंगे मेरे को जहां तक अंदाज है कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स रहते हैं या मोटिवेशनल वीडियोस की बात करते हैं हम लोग, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है मोटिवेशनल वीडियोस. 2-3 बातें रहती हैं सर. पहला, सबसे ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस जो चल रहे हैं दैट इज ऑन बॉडी बिल्डर्स. बॉडी बिल्डर्स ज्यादातर आते हैं और वो जिम के बारे में बताते हैं, मसल्स के बारे में बताते हैं और वो हार्ड वर्किंग के बारे में बताते हैं. अब अगर मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूं तो ये मेरे साथ में ज्यादा समय तक कैरी नहीं कर पाएगा सर, है ना. मेरे को बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है. अब वो मैंने थोड़ी देर के लिए देख लिया, मेरे को बड़ा जोश आया. कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है दैट द पीपल आर कैरिंग दिस जोश एंड जुनून फॉर सम टाइम आल्सो. दे आर गोइंग टू द मार्केट परचेजिंग द इक्विपमेंट्स, कमिंग बैक होम. मैंने अधिकतर ट्रेडमिल और डंबल्स, ट्रेडमिल पे तो मैंने टॉवेल सूखते हुए देखे हैं, बिल्कुल फ्रैंकली बताता हूँ आपको कि वो उसमें एक्सरसाइजेस तो होती नहीं है, टॉवेल सूखते हैं, कपड़े सूखते हैं उसके ऊपर. तो ये बहुत मोमेंट्री होता है. और जब दर्द होता है ना सर, जब जैसे एक्सरसाइज किया और दर्द किया तो नॉट मोर देन 3 डेज सस्टेन कर पाता है आदमी. मैंने जिम का भी एक्सपीरियंस ये है कि जिम में जैसे व्यक्ति जाता है ना, अगर व्यक्ति 7 दिन सस्टेन कर लेता है तो पॉसिबिलिटी कुछ बनती है कि ये आगे भी सस्टेन करेगा. आप जिम वालों को देखना, उन लोगों का पैकेज 3 महीने का होता है, शुरू ही 3 महीने से करते हैं.
यस सर। हम उनसे बोले महीने की फीस ले लो, तो उनको ये कंफर्म है कि अराउंड 80 to 90% पीपल विल गो बैक देयर होम। मोटिवेशन बस इतना ही चलता है। लेकिन इसके 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 अगेंस्ट में, यानी ऑन द अदर साइड वी कैन सी कि सर, अगर किसी ने 7-8 दिन जिम जाके एक्सरसाइज कर लिया, ही कंटिन्यूज और शी कंटिन्यूज। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर हमको पॉजिटिविटी चाहिए तो हमको पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना पड़ेगा। तो जैसे ही वो जिम में जाता है, वहां पे देखता है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो काफी समय से कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनका फिटनेस अच्छा है, जिनकी बॉडी अच्छी है, एंड ही और शी कंटिन्यूज। दूसरा मैं बताता हूँ, दूसरा एस्पेक्ट रहता है कि जैसे ही मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, दे आर वेरी पॉपुलर पीपल। आप देखना जितने भी मैक्स पॉपुलर पीपल हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द टाइकून्स रादर देन कॉमन मैन। और जो कॉमन मैन की यस बात सर। करता है, उससे मोटिवेशन नहीं आता है सर। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट रतन टाटा, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट बिल गेट्स, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट स्टीव जॉब्स। इन लोगों के बारे में बात करते हैं। एक्सेलेंट पीपल, बहुत मेहनत की है। इतने टॉप पे ऐसे ही नहीं जाया जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टैलेंट भी होना चाहिए, इंटेलेक्ट भी होना चाहिए, और फिर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। अब होता ये है कि हम लोग उनको देखते हैं, कुछ समय अपील करता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चलता सॉरी। रहता है कि नहीं, ये एक्सेप्शंस हैं, ये हम लोगों से अलग हैं, और इतनी तो हमारी पहुंच ही नहीं है। एंड देन अगेन द सेंस ऑफ रिजेक्शन कम्स बैक। अभी सर मेरे एक कलीग हैं बादल सर, उन लोगों के साथ में चर्चा हो रही थी मेरी, तो एक स्टेटमेंट बादल सर की तरफ से आया था। ही सेज कि नेटवर्क मार्केटिंग वाला व्यक्ति मेरे पास में आया, 3 करोड़ का मेरे को सपना दिखाया उसने, ऑडी मेरे घर पे खड़ी कर दी, और अपने स्कूटर पे वो घर वापस चला गया। अपने स्कूटर पे वो घर वापस चला गया। Unless and until we are finding some real time heroes in our life, it's really very difficult to keep ourselves positive. और ये कहना एकदम गलत होगा कि हमारी जिंदगी में पॉजिटिव लोग नहीं है। हम लोग 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे साथ में ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, प्रोफेशनल्स होंगे यहाँ पे। एवरीबडी इज पॉजिटिव, क्योंकि कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ वैल्यू एडिशन चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। दीज आर द पॉजिटिव पीपल। तो अवॉइड नेगेटिविटी, ज्वाइन विद द पॉजिटिव पीपल। अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि जितना भी हमारे मुंह से वर्ड्स निकलें, स्टेटमेंट्स निकलें, शुड बी पॉजिटिव वन। और ये हैबिट अगर बन जाती है हमारी, कीपिंग आवरसेल्व्स पॉजिटिव, तो आप देखना आपके आसपास, आपका सराउंडिंग, आपके आसपास के लोग, दे विल ऑटोमेटिकली टर्न पॉजिटिव। बैक टू यू मैम। Thank you so much for a wonderful answer. Back to you, Shubham sir. Am I audible? यस यस। Yes, sir. Okay. काफी सही तरह से सर ने एक्सप्लेन करा, स्पेशली सर के एग्जाम्पल। ये मीम एक्चुअल में मैंने भी देख रखा था, किसी ने स्टेटस लगा रखा था बीच में व्हाट्सएप पे, ठीक है। राइट राइट। तो काफी रिलेटेबल है। नेक्स्ट थिंग सर, कहीं ना कहीं अगर मैं क्वेश्चन पे वापस आ जाऊं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी आज आपके पास भी सर थोड़ा सा टाइम कम था, हम लोग दोबारा से क्वेश्चन पे इसीलिए थोड़ा सा फोकस रहना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं सराउंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। लाइक ये एक्चुअल में हम लोगों ने कई बार सुन रखा है, आपने भी, सर ने, मैम ने भी अभी बताया कि कहीं ना कहीं लिसनिंग के बाद हमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि जब हम लोग किसी भी लैंग्वेज को जब यूज करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां आपसे एक से ज्यादा इंसान वहां होना चाहिए, जिसके साथ में आप उस चीज को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर सको, आप उसका यूज कर सको। अब अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें, इंडियन स्टूडेंट्स की जो मेन प्रॉब्लम रहती है कि लाइक एक स्टूडेंट से ही मेरी बात हो रही थी, तो उसका कहना था कि सर अब घर को तो अब्रॉड में शिफ्ट कर नहीं सकते, और घर आके तो हमें बात, वो इंटरेक्शन तो पूरा हर टाइम उसी अपनी लोकल लैंग्वेज में करना है। तो इस चीज का एक रियल टाइम, एक रियल सॉल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं इस चीज के लिए? क्योंकि इंटरेक्शन इज इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप एक कम्युनिकेशन को, किसी भी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन आप डेवलप करना चाहते हो, तो लैंग्वेज उस इस चीज का एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं? शुभम, यू आर आस्किंग मी, यू आर आस्किंग मैम? सर आपके लिए ये क्वेश्चन। अरे बेहतरीन है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जी। ये सारे बहानेबाजी छोड़ दिया जाए तो बहुत बेहतर है। मैं सारे स्टूडेंट्स को विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्कुल विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिगार्ड, मैं आप सारे लोगों को बता दूं कि
स्कूल टाइम के बाद में मैं सीधा ट्रेनर नहीं बन गया हूँ। हमेशा से यहाँ पे आके कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं बस गया हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। शुभम, वुड यू लाइक टू हैव सम एग्जांपल्स आल्सो? Yes, sir, definitely. हाँ, देखिए, आई हैव बीन फ्रॉम ए वेरी स्मॉल प्लेस कॉल्ड अशोक नगर। चंबल का Okay. बॉर्डर टच करता है सर वहां पे, Yes, sir. शिवपुरी अशोक बुंदेलखंड टच नगर करता है है। वहां पे, Yes, sir. Yes, sir. बघेलखंड भी आता है वहां पे, थोड़ा सा मालवा भी टच करता है। अब सारे स्टूडेंट्स मेरे से थोड़ा सा तो 2 मिनट लूंगा सर, और मैं पूछूंगा कि इसका असर तो मेरे पास भी आना चाहिए। हमारे गांव में बोलते हैं Definitely. मोए समझ में नहीं आ रहा हो, क्या करूं, मोए समझ में नहीं आ Yes, रहा sir. हो। Yes, sir. उधर से वापस आता हूँ, बीना तक पहुंचता हूँ, खुरई जाता हूँ, सागर, हमौरन को समझ में नहीं आ रहा हो। Yes, sir. भोपाल में आता हूँ, बोलते हैं अरे हाँ मेरा को समझ में नहीं आ रही है। Yes, sir. इंदौर में जाता हूँ, बोलता हूँ नहीं आ रही है भाई, नहीं हो पाएगा। और मैं जिन स्टूडेंट्स के साथ में काम करता हूँ वो बोल रहे हैं सर बूझ नहीं ना रहा है। Yes, sir. अब मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं अगर इतने सारे एमटीआई के ऊपर काम कर सकता हूँ और उसके बाद अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो आप उसको वेरी वेल यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मैं न्यूट्रल टंग में बोल रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग एनी एक्सेंट। तो सिंपल सी बात यह है कि जब आप इंग्लिश बोलो तो इंग्लिश जैसा बोलो, जैसे ही आप अपना मदर टंग बोलो तो आप अपने हिसाब से बोलो। तो ये बहाना है, ये सिर्फ बहाना है कि हमारा जुबान वैसा हो गया है इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं, ये सिर्फ बहाना है। मैडम ने अभी इट वाज वंडरफुली एक्सप्लेन्ड, दीपा मैडम ने जैसे बताया LSRW इज द फॉर्मूला। और हम लोग जैसे ही इंग्लिश के बारे में बात करते हैं ना, देखिए लिसन स्पीक रीड एंड राइट procedure. And whenever I am getting into the class, especially spoken English class और communication skills class, तो जैसे हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, जितने कैंडिडेट्स और जितने स्टूडेंट्स रहते हैं ना सर, सबसे पहले अपनी कॉपी खोलते हैं, पेन उठाते हैं, और जैसे कॉपी पेन की बात आती है, वी आर टेकिंग द W फर्स्ट। इसका मतलब है कि हम सिर के बल खड़े हुए हैं। सर एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं, आप एक काम करो बोल दो, हम लिख लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं। दैट मीन्स अपसाइड डाउन खड़े हुए हैं, हम सिर के बल खड़े हुए हैं। वो एग्जांपल्स भी ऐसे ही आते हैं ना सर। देखिए कि लिसनिंग का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है सर? रिकवरी रूम, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम से शुरू होता है सर। लेकिन वो लैंग्वेज नहीं होता, या फिर इन केस लैंग्वेज भी होता है तो वो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये अत्याचार चलता रहता है करीब 1 साल 1.25 साल तक। हम लोग सारे लोग Yes, sir. जाते हैं, तो जैसे रिकवरी रूम में से आता है, बच्चे को हैंड ओवर करते हैं। मोस्टली दे इट शुड बी या तो नानी होती है, या दादी होती है, या मौसी होती है, या बुआ होती है, उनके हाथ में देते हैं। और वो जब सबसे इंट्रोडक्शन कराती है, इंट्रोडक्शन करा रहे हैं सर न्यू बॉर्न बेबी का, आप यू कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल का एक्सप्लॉइटेशन Yes, चल रहा है sir. बच्चे के साथ में। अभी अभी दुनिया में आया है, उसको Yes, मालूम नहीं sir. है कि हो क्या रहा है, एंड देन यू आर स्टार्टिंग टॉकिंग टू हिम। और वो भी 1 साल तक चलता रहता है, और 1-1.5 साल बाद क्या परिस्थिति आती है सर कि वो बोलना स्टार्ट करता है। तो बोलता क्या है वो? मम्मा, मम, पापा, वो इवन आ और ई की मात्रा एक साथ नहीं लगाता है सर। तो इस तरह से उसका बोलना स्टार्ट होता है, और एक टाइम ऐसा आता है सर कि वो इतना बोलता है, इतना बोलता है, ये क्या है, वो क्या है, इसका क्या होता है, उसका क्या होता है, आप खुद परेशान हो जाते हो। और उस परेशानी से बचने के लिए आप बाजार में जाते हो और एक पिक्चर बुक खरीद के लेके आते हो जिसमें इतना सा ए बना रहता है, इतना बड़ा एप्पल बना रहता है, और वहां से उसकी रीडिंग शुरू हो जाती है। एंड इट इज द लास्ट व्हेन वी आर राइटिंग। वेरी ट्रू, वेरी करेक्टली, बिल्कुल हम लोगों को जिस तरह से दीपा मैम ने बताया, अंजलि मैम ने एलॉबरेट किया, दैट वाज द सेम वन, LSRW। तो मैं सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको अपसाइड डाउन मत करो, और जो इन्फ्लुएंस आ रहा है उसको सेग्रीगेट करके रखो। इसी तरह से इंग्लिश सीख लिया जाए ना, सबसे पहले लिसन। और अब मेरे टाइम में ऐसा होता था कि अगर मेरे को सुनना है तो आई नीड टू कैच अ पर्सन हु इज स्पीकिंग एंड आई एम लिसनिंग। आज की डेट में ये मजबूरी नहीं रह गई है सर। जिस स्मार्टफोन पे हम लोग अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसी पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। समबडी स्पीकिंग, यू जस्ट हैव टू लिसन, आपको सिर्फ सुनना है। कुछ एक एक्सरसाइजेस मैंने ऐसे देखी हैं सर कि एक बोलता है और दूसरी जगह ब्लैंक हो जाता है, उस जगह पे आपको बोलना है जिसमें लिखा हुआ है। तो यू आर हैविंग n नंबर्स ऑफ वेज हाउ यू कैन प्रैक्टिस। एंड देन एक और बात बताता हूँ लास्टली सर, 10 लोग मेरे पास में इकट्ठा आते हैं और बोलते हैं सर किससे बोले, एनवायरनमेंट नहीं है, समझ में नहीं आता क्या करें।
और ये मेरे को बिल्कुल फनी लगता है कि 10 लोग इकट्ठे मेरे पास में आ रहे हैं और ये 10 लोग इकट्ठे बोल रहे हैं, किससे बोले समझ में नहीं आ रहा है। तो अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है बेटा। हमेशा ऐसा होता है कि अगर मेरे को दर्द है और तेरे को दर्द है तो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फील, दोनों एक दूसरे के दर्द बांट लें, वो बेहतर है। तो स्टार्ट Yes, sir. स्पीकिंग विद योर पार्टनर, फ्रेंड, आप अपने घर पे ब्रदर सिस्टर किसी से भी बात कर लें। और अगर ये भी नहीं होता, अगेन अपने स्मार्टफोन का सहारा ले लें। एक टेक ए पैराग्राफ, उसको पढ़ लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, सुन लिया, एंड वी आर वेरी गुड जज। हमको भले ही इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अगर किसी ने गलत इंग्लिश बोल दिया ना सर, हम तुरंत पॉइंट आउट कर देते हैं गलत इंग्लिश बोल रहा है। तो फिर यही वाला एक्सपेरिमेंट खुद के साथ में कर दिया जाए। आवाज रिकॉर्ड करो, खुद ही सुन लो, खुद को मालूम चल जाएगा कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इस तरह से किया जाए, अच्छा होगा सर। I'll Definitely, just sir. like Yes, to ma'am. Yes, add a ma'am. little Please, bit. please. I'll Yes, just ma'am. like to add to what Anish sir has already said. Although he has given the tip on how to do it when you're all alone, I'd just add a perspective to it. You know, what happens is when we are talking about language, it is more to do with our senses. You know, the more the senses focus towards learning or acquiring the language, the more you are towards getting the language to full. So what are the Right. senses that are deployed? It is your sense of sight, okay? So sense of vision. We say your oral sense, listening, and speaking when we talk about your auditory sense, okay? So the oral sense. So when we are talking about all these three things, the cases where you don't get company or you feel that you don't have people where you can interact fully. Yes, the solution that Sir said was absolutely the right thing. But if you can relate it from your school years, your teachers have always been emphasizing on loud reading. Very correct. Right? When Very we correct. talk about loud reading, what is the Mhm. reason behind loud reading? Your eyes are focusing on something, your ears are listening, and you are making your tongue feel acclimatized to what you are reading and listening in your own voice. A lot many times you would see that when you ask somebody to come to the stage and speak on a topic, the person is either shivering or is laughing or giggling. Okay, nobody knows what this person is about to share, and yet this person is shivering and giggling. Can you understand the reason why? Because you are not familiar to listening your own voice in English. You find it so strange. Today, if you ask me to say something in Tamil, naturally Tamil is not my language, so any word that you ask me would be some kind of a mumbo jumbo for me, and I would find it very funny to listen. Okay? So acquiring a new word is always a little funny, and speaking it is even funnier. So the more the Very true. number of Very true. times you get your tongue to say something and make your ears get used to listening your own voice in that particular language, you would get more comfortable with that language. So if you're not getting anyone, yes, recording is one of the best options that you have available, very handy these days. That's all from me. Thank Very you. true. Very true. Yes, ma'am. Agreed. Very insightful. नेक्स्ट क्वेश्चन अनीश सर आपके लिए। जी एक इन जनरल डाउट आया है, बहुत सारे लोगों का आया, और कि हमारा बैकग्राउंड हिंदी बैकग्राउंड से रहा था और इस ऑब्स्टिकल को हमने स्टार्ट करा उसको अवॉइड करना और इंग्लिश बोलना स्टार्ट करा। लेकिन हमारे ही फ्रेंड्स जिनको शायद से उनको भी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम बहुत अच्छे जज है, ठीक है, इंडिया में जजमेंटल लोगों की बहुत मतलब कोई कमी नहीं है, भरमार है, बहुत सारे भरमार लोग है, हैं। बिल्कुल। तो आपको नहीं आता वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम गलत बोलेंगे तो वो हमारा मजाक उड़ाते थे और उन्होंने इतना उड़ाया कि हमने बोलना बंद कर दिया। तो इसके राइट, ऊपर राइट। आपका कोई सजेशन, क्योंकि ये देखिए एक सर, किसी की नहीं है, काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रखा है, तो इस पे एक बार डिस्कशन हमारा होना जरूरी है। सर एक बार इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए। कहीं मैं ऐसा तो यस नहीं सर। कर रहा हूं कि मैं ये बता रहा हूं कि विराट कोहली को कैसे खेलना चाहिए था, कि नरेंद्र मोदी को क्या डिसीजंस लेना चाहिए था। क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद भी ये कर रहा हूँ? और उसकी जेन्युइनिटी कितनी है ये भी तो सोचिए। मैं यस सारे सर। एस्पिरेंट्स से, सारे कैंडिडेट से एक बात बोलना शुरू करता हूँ, बेशरम तो बनना पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा, और ये हर बार करना होता है।
आपको खुद को याद नहीं रहता है। अदरवाइज आप इस बात को देखना कि जब छोटे बच्चे मदर टंग बोलना शुरू करते हैं तो आप कितने मजे करते हैं उनके साथ में। उनसे बोलना नहीं आ रहा है, उनको वो तुतला रहे हैं, और फिर देन वी आर रिपीटिंग इट। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम ये बोलते हैं कि अब ये बड़े हो गए, इनके साथ में तुतला के बात नहीं करना है, क्योंकि वो इमिटेट कर लेंगे और वैसे का वैसा हो जाएगा। बच्चों को देखो ना बेशरम होते हुए, वो चाइल्ड माइंडसेट लाना पड़ेगा हमारे दिमाग में। वो बच्चे किस तरह से किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं, उस तरह से हम लोगों को करना ही पड़ेगा। और हंसेगा सिर्फ वो ही, शुभम सर मैं बहुत फ्रैंकली आपसे बोल रहा हूँ, हंसेगा केवल वो व्यक्ति ही जिसको इंग्लिश नहीं आती। क्योंकि जिसको इंग्लिश आती है ना, उसको उस बात का दर्द मालूम रहता है कि इंग्लिश सीखने में या किसी लैंग्वेज को बोलने में कितनी तकलीफ होती है, फिर वो भले हिंदी क्यों ना हो, है ना। तो जिसको आता है, देखिए मैं हमेशा ये बोलता हूं, देखो जब आपको बोलना है आप जाओ और धड़ल्ले से बोल दो। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक जिनको इंग्लिश आती है और एक जिनको इंग्लिश नहीं आती। अब अगर आप गए और आपने बोल दिया इंग्लिश, और जिनको इंग्लिश आती है वो या तो आपको करेक्ट करेंगे या आपको अवॉइड कर देंगे। जैसे मेरे पास में, मैं कहीं जा रहा हूं, मैं मार्केट में हूं और किसी ने मेरे साथ में इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया, एंड इफ ही इज mispronouncing the words, if he is grammatically wrong while constructing the sentences, मैं उसको सड़क पे नहीं रोकने वाला, मैं उससे नहीं बोलने वाला कि बेटा तुमने ये ग्रामेटिकल एरर कर दिया या तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, राइट। तो अगर आपको इंटरव्यू नहीं किया गया है, आपको इंटरप्ट नहीं किया गया है, तो लेट गो, आप अपने सेंटेंसेस बोलो और लेट गो। दूसरी बात, वो व्यक्ति जिसको इंग्लिश आती है वो आपको करेक्ट कर देगा कि बेटा अब हो जाता है कभी कभी, मेरे ही अगर बच्चे मिल गए, अगर मेरा ही स्टूडेंट कोई मिल गया उसने मिस प्रोनाउंस किया, तो भले ही फिर वो सड़क पे हो, मैं उससे कहूंगा बेटा इसको थोड़ा सा चेक कर लो, ऐसे बोलते हैं इसको। तो दूसरा तरीका यह है कि वो चेक कर देते हैं। अगर आपको चेक कर दिया है तब भी आप ही का बेनिफिट है, दैट यू आर गेटिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और यू आर गेटिंग द करेक्ट स्ट्रक्चर। दोनों ही टाइप से हम लोगों को फायदा है। और जिसको इंग्लिश नहीं आती तो फिर तो कुछ भी बोलो और चले जाओ, आई गो, यू कम, नो कम, आई गो, इंग्लिश इज नॉट कमिंग। हाँ, इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी। नहीं, मैंने देखा हुआ, देखो सर ये एग्जाम्पल है कि मैं जा रहा हूँ, तुम चल रहे हो, नहीं चल रहा, मैं तो जा रहा हूँ, आई गो, यू कम, नो कम, आई गो। स्टार्ट तो करो कहीं से, उसके बाद में फिर ये दो तरह के लोग मिलके आपको सुधार देंगे, ये कंफर्म है। स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। Definitely. I'll just add a little bit to this. Sure, yes, sure. this is a very common situation, but then there is an alternative to this, to the level of students that we are talking right away. I guess, like, we are having students who are already into professional studies at the moment, right? And we have people who are consciously working towards their career. So one of the areas where I can address this is talk with knowledge. If you have components in your, if you have content in your speaking, no matter how structurally wrong you are speaking, the other person would still listen. But if you don't have any gray matter put to it, you don't expect people to listen to a film talk or a gibberish anytime. So if you have sensible thing to be put up in the platter, if you have some gray matter which is unique and is full of knowledge, people will still listen even if you are structurally a little not so good. So try putting yourself in a situation where you are a little specialized with your knowledge sphere. Try specializing on the content of what you want to speak. Knowledge is the key. Now, see, there is a little difference between training adults for language and training children for language. So the structure of LSRW ideally works very good with children. Now, when we are talking about adults, you have already attained a certain level of English. There is nobody here in the group or in the audience, I would say, who has never learned English at any level. You always have English as one of the languages, one of the alternatives that is always available. Even if you're going out to purchase a packet of Maggi, whether you're living in Tamil Nadu or you're living in Kashmir, the second language which is available on the wrapper is always English. And that is the language you are looking forth to. The only problem is we don't consciously look towards it, and we always have a backup. So stop looking towards that backup all the time. If you have to plunge in towards learning English, you have to plunge in completely. It's just like swimming.
You cannot be holding up to the pool side and thinking of going on the deeper side. So you really have to plunge in and give yourself a chance to swim. So when you are going for English, give yourself that full swing with an interface of knowledge at your maturity level at the adult phase, which is going to be an ideal situation where people would be bound to listen to you, even if you're talking a little less on the structural part of the language. That's my call on it. Very true, absolutely correct. Exactly. So, ma'am, I have the next question for you. As we all know that being able to communicate effectively is perhaps the most important of all the life skills. But we know that communication has two types, verbal and non-verbal. So, इसमें हमारे students का doubt है कि कौन सा ज़्यादा important है? Whether verbal communication is the most important of the both or the non-verbal skills? Which one is the most important for us? Or both of them are equally important? I would say this is a very relative question. It depends on what medium are we talking about, what is the context, and then again, who is your audience. So this is completely relative. I would say that both have their own areas of expertise and influences. So saying that non-verbal communication is not important would be biased, and both have their own say. Now let's talk about what we call as a verbal communication and a non-verbal communication. Okay. Now when we talk about non-verbal communication, the plethora is big. You have your gestures, you have your dressing sense, the way you approach something, even the color of the room is also speaking something. Okay. So everything that is apart from the words that you are using is all falling in the category of non-verbal communication. A lot many times when we talk about your non-verbal communication, it is an uncontrolled affair. Now, where we have the control is the verbal communication. So when we talk about speaking skills, especially, we would say that having a good command over your verbal skills can give you a certain amount of control over what you want to negotiate on. You cannot always have a control over your environment, about the kind of circumstance that you are speaking in. You cannot say the room where I'm standing and speaking may be a little gloomy and I want to talk about something which is very chirpy and very energetic, and it may not give the right appeal, right? So the non-verbal communication has its own zone of interference. It cannot be overruled, because when we talk about your interview skills, definitely the kind of gesture that you maintain, the kind of body language that you approach with is a component of nonverbal skill. So it is completely contextual where you want to place the importance of either of them. But I would always say that, having control over your verbal skills is definitely an edge over other things, because it helps you to keep a control over what you really want to deliver. So not to say that one is lesser or the other one is not so important. Each one has its own play. In fact, Anish sir can give a better insight on the non-verbal side of it, because I'm not really from the side of communication. But when I talk about all these things, talking about the language, I always feel that, if you have good control over your words, you always have a certain edge over what you really want to convey to the other side. So that is my key towards having a good communication. Okay, ma'am. So as we all have heard that words play an important role in our communication skills and our whole persona. But let us hear about the non-verbal communication and its aspects by our Anish sir. Sir? मैडम, अगर डेटा की बात किया जाए तो डेटा बहुत क्लियर बोलता है कि 93% हम लोगों के जेस्चर्स और पोस्चर्स की बात करते हैं हम लोग, और 4% यानी 4% हम लोगों का वॉइस मॉड्यूलेशन काम करता है। 93% हम लोगों का जिस तरह से जो जेस्चर्स हैं, हमारे जो पोस्चर्स हैं वो काम करते हैं, और 4% हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन काम करता है। तो ये कुल मिला के हो जाता 97%। ओनली 3% इज द वेटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ये डेटा बोलता है। ठीक है, दीपा मैडम राइटली सेड, हम उस 3% को इग्नोर नहीं कर सकते। आई विल टेल यू शुभम, एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं मैं आपको, और उससे ये बहुत क्लैरिटी हो जाता है। देखिए, जब हम एग्जाम्पल लेने के लिए अगर एग्जाम्पल्स ढूंढे ना, तो हमारे आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसके लिए अलग से कहीं जाना ही नहीं पड़ता। एक बार मैं अपने गांव गया वापस,
and I saw that boys and girls, they're wearing all the modish kind of dresses, and then उन ड्रेसेस को पहनने के बाद में उन्होंने थोड़ा सा चेक किया बॉडी लैंग्वेज को ऑल्सो. तो आई वाज टॉकिंग टू माय कलीग, मैंने कहा यहाँ पे लड़कियां सुंदर हो गई हैं भाई, मॉडर्न हो गई हैं लड़कियां, ऐसे करके एक कमेंट आया जिस तरह से गांव में चलता है. तो आई वाज ए बिट सरप्राइज कि देखो इतनी जल्दी डेवलपमेंट कैसे हो गया. दे वर वेयरिंग जींस, दे वर वेयरिंग मॉडर्न ड्रेसेस, दे वर वेयरिंग टी-शर्ट्स विद ऑल द प्रिंट्स ओवर हियर, एंड दे वर हैविंग द मेकओवर्स आल्सो. मेकओवर भी था उनको, बढ़िया से चले गए, एंड दे वर क्लाइंबिंग ए डिपार्टमेंटल स्टोर, वो वहां पे चले गए. अब हुआ ये कि इवेंचुअली मैं भी उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना चाहता था, मैं चला गया. तब तक मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरा गांव तरक्की कर रहा है, नए विचार आ रहे हैं, लोग मॉडर्न हो रहे हैं. ठीक है. अब वो 3% की बात आती है सर, वो 3% की. और वो द ग्रुप ऑफ गर्ल्स, द बंच ऑफ गर्ल्स वेंट डाउन टू द शॉपकीपर, और मुंह से जो पहला सेंटेंस निकला वो 25 रुपया वाली लिपस्टिक दे दियो, एंड एवरीथिंग एंडेड अप ओवर देयर. सब खत्म ही हो गया वहां पे. अब ऐसे में अगर एक किसी को वेटेज देंगे, दीपा मैम राइटली सेड के एक किसी को वेटेज नहीं दे सकते, अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन ये पक्का है कि अगर हम शुरू से कम्युनिकेशन को देखें, जैसे अगर मैं अपने एस्पिरेंट से अभी पूछता हूँ, मैं नॉर्मली अपने कॉन्फ्रेंसेस में ये पूछता रहता हूँ कि हमारा कम्युनिकेशन कब स्टार्ट हुआ, तो वो बोलते हैं जैसे ही आपने हेलो बोला, जैसे ही हमने गुड आफ्टरनून बोला, जबकि ये थोड़ा सा बोगस है, क्योंकि जैसे ही मैं रूम में एंटर किया वैसे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया. पीपल स्टार्ट जजिंग अस, हम लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं, है ना. ये तो सर ऐसे हैं, इनकी शक्ल से तो स्ट्रिक्ट लगता है, पता नहीं ये क्या पढ़ाने वाले हैं, ये तो बहुत सीनियर लग रहे हैं, ये तो गंभीर होंगे, अरे यार आज का सेमिनार तो. पहले ही ये सारे के सारे जजमेंट हम लोग कर लेते हैं, या स्टूडेंट्स कर लेते हैं, एस्पिरेंट्स कर लेते हैं. बाद में मालूम चलता है अपसाइड डाउन हो गया. एंड अगेन ये भी बोला जाता है कि द मोस्ट वी जस्ट टेक 7 seconds टू मेक आवर फर्स्ट इंप्रेशन, ऐसा बोला जाता है. वी जस्ट टेक 7 seconds, and definitely it would be the non-verbal communication, how you're carrying yourself, how your body language is, how your smile is, eye contact कैसा है, इससे ये डिसाइड हो जाता है. ये पहला इंप्रेशन 7 से 10 सेकेंड में डिसाइड हो जाता है. इंटरव्यूज के बारे में भी ये बताते हैं कि पहले के 30 सेकेंड्स के अंदर जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कैंडिडेट को लेना है कि नहीं लेना है, और बाकी जितना भी इंटरव्यू चल रहा है वो उस जजमेंट के ऊपर है कि अगर उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं. तो नॉन वर्बल का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है. लेकिन वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि अगर हमारे शब्द खराब है, हमको शब्द नहीं आ रहे हैं, तो दैट विल मेक. जो होता है ना सर, फिल्मों में आप देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे अभी ही कोई फिल्म देख रहा था मैं, कि एक कोई ऐसा तबके का आदमी है जो मेट्रोपॉलिटन कल्चर में नहीं ढला हुआ है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में नहीं ढला हुआ है, और वो जिस तरह के एक्सपेरिमेंट करता है अपने साथ में, आप बढ़िया सा सूट पहन लेंगे, बढ़िया सी टाई लगा लेंगे, आप मेकओवर भी कर लेंगे, आप एक लेवल तक अपना बॉडी लैंग्वेज चेक भी कर लेंगे, लेकिन फिर जैसे ही आपने मुंह खोला और अगर गड़बड़ हो गया, अपनी से भगवान है, तो गड़बड़ हो जाता है, फिर उसमें हम लोग हेल्प नहीं कर सकते. तो उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा. डेफिनेटली वी नीड टू वर्क ऑन बोथ द एस्पेक्ट्स. हम लोगों को दोनों जगह पे काम करना ही पड़ेगा सर. एग्जैक्टली सर. कहीं ना कहीं हम इसको एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम लोग नॉन वर्बल एंड वर्बल में ना, मतलब उनको कुछ उसको वर्सेस ना करें, नॉन वर्बल वर्सेस वर्सेस वर्बल जैसा ना तो करें. है ही नहीं. भले ही परसेंटेज हम लोगों को ऐसा लगता है कि कम है, लेकिन हाँ, वो 3% भी सब खत्म कर सकता है. हाँ सर, मैंने कुछ और सोचा, मैंने इसमें ना एप्टीट्यूड वाला पर्सपेक्टिव लगाया है. इस पे मैंने एप्टीट्यूड लगाया है थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं आप अगर क्वांटिटी वाइज देखो तो डेफिनेटली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका 97% आपका पार्ट लेके रखा है, एंड वर्बल आप अगर देखोगे तो आपका 3% पार्ट लेके रखा है उसने. लेकिन अगर आप क्वालिटी वाइज उसको जज करने जाओगे तो फिर आप दोनों में से किसी भी एक को इग्नोर नहीं कर सकते. आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, और अगर आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बड़ा खराब है, कोई मतलब नहीं, तो दोनों है ना. कंडीशन में ये वाइस हाँ, है ये. सेम. सर बाकी कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के पास तो बिल्कुल ही
मतलब मैं क्या ही बोलूं, उनको बताना भी चाहिए या नहीं बताना चाहिए? नहीं नहीं, बता दीजिए। देखिए देखिए, जी। क्वेरी है तो हम लोगों को बताना चाहिए, बिल्कुल बताना नहीं नहीं चाहिए, नहीं। बोलिए ना। उसके पहले एक इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स के लिए है कि आप अगर अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वो हम लोग देख रहे हैं। उसमें से पिक करके हम सर से या मैम से हम लोग वो क्वेश्चन पिक जो है पुट कर देंगे सर के या मैम के सामने। एक और चीज कि जो स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड है, जो लाइव आके अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन सर या मैम के साथ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में आपको एक इनवाइट लिंक दे रखा है। आप उस इनवाइट लिंक को फॉलो करके आ सकते हो और आप डायरेक्टली सर से या मैम से अपना डाउट लाइव क्लियर कर सकते हो, राइट। अब थोड़ा सा टाइम की हम लोगों को यहाँ कमी है, तो मैं ये देखो, मैं सबको नहीं अलाउ कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ऐसे मौके में दिलवाते रहूंगा। ठीक है। तो सर जो डाउट था, 2 डाउट तो ऐसे थे कि एक का तो ये था, उसने लिखा हिंदी में था कि सर मेरे को अंग्रेजी ही समझ में नहीं आती, और दूसरा जो डाउट नहीं मेरे को अलग ही लगा वो ये था कि सर मैं सबसे इंग्लिश में बात कर लेता हूँ, लेकिन अगर कोई ब्यूटीफुल लड़की सामने खड़ी हो तो मैं बस उससे इंग्लिश में बात नहीं कर पाता हूँ। मैं पहले भी बोल रहा था सर, मैं पहले भी यही बोल रहा था, इसमें इंग्लिश का कोई दोष नहीं है। ये दोष आपकी नजर का है। भैया देखो, मेरे को बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, मेरे को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, ठीक है। और आप अगर मेरे को नींद में भी क्वेश्चन करते हो तो मैं अंग्रेजी में जवाब दे सकता हूँ। लेकिन ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, ये मेरी भी प्रॉब्लम है। अगर मेरे सामने कैटरीना कैफ को खड़ा कर दोगे तो मेरी बोलती बंद हो जाएगी, फिर भले ही वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, इसका इंग्लिश से कुछ लेना देना नहीं है। तो थोड़ा सा फोकस करो। शुभम सर, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने देखा है कि यस एक सर। हमारे इधर, आई डोंट नेम द कॉलेज, लेकिन मैं उस समय उस जगह पे कैंपस पे था, राइट। और ये बहुत यस सर। पुरानी बात है सर, ये इट माइट बी 2005 और 2006, इस समय की बात होगी। तो वो कैंपस चल रहा था और एक बहुत कॉन्फिडेंट कैंडिडेट जिसको हम लोग ब्लाइंडली, जिसको हम लोग जैकपॉट बोलते थे कि ये तो कर ही लेगा, वो अंदर गया और मुश्किल 3 मिनट के अंदर बाहर आ गया। और हमने उससे पूछा क्या हो गया, 3 मिनट में खत्म हो गया तेरा इंटरव्यू? बोले सर बोल ही नहीं पाया। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? इतनी सुंदर है सर, बहुत ही सुंदर है। मैं कहा क्या? बोले वो एचआर मैडम ने बहुत ही सुंदर है। और सर आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने सिगरेट निकाली मेरे सामने। सिगरेट पीता है क्या? कोई लेडी सिगरेट पीती है क्या? इस तरह की बात करी उसने। मैंने उससे बोला कि तू जज करने गया था भाई, कि तू इंटरव्यू करने के लिए गया था? ये स्ट्रेस इंटरव्यू में सर, पहले एमआर होता था, स्ट्रेस इंटरव्यू होता था, टॉर्चर इंटरव्यू, ये उसका एक पार्ट था। अगर आप ये फेस नहीं कर पाते, इसमें आप लैंग्वेज को बिल्कुल दोष नहीं देंगे। होल्ड योर फीलिंग्स। बेहतर है कि आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड करें और फिर देखें। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मेरे को सर अंग्रेजी समझ में ही नहीं आती। तो अगर मैं बोलता हूं चाहे लेमन बोलता है, वो झूठ बोल रहा है सर। झूठ बोल रहे हैं हम लोग कि हमको इंग्लिश आती ही नहीं है। सर अगर हम लोग मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अपनी जितनी कन्वर्सेशन होती है, जितनी बातचीत होती है, अगर फिर वापस से एप्टीट्यूड की बात करें, हम लोग थोड़ा सा मैथ्स की बात करें, 60 to 70% सर हम लोग इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल को हिंदी में डेफिनेटली कौन सर। बोलता है बताइए? तो ईयरफोन में पकड़े हुए हैं, इसको हिंदी में कौन बोलता है? ट्यूबलाइट। अब आप जबरदस्ती ही करो। मैंने एक से बोला कि ट्यूबलाइट को हिंदी में कौन बोलता है, तो एक खड़ा हुआ, श्वेत प्रकाश विद्युत चलित दंडिका, कौन बोलता है? अब ऐसी स्थिति में फिर मेरे को आई फील ए बिट पिटी ऑल्सो, कि देखो आप अपना लॉजिक जीतने के लिए मेरे से ये बोल रहे हो कि हाँ हिंदी में ऐसा बोला जाता है, अदरवाइज वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिर मेरे से ये बोलते हैं कि सर वोकैब की प्रॉब्लम है। बेसिक वोकैब की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सपोज आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश राइट फ्रॉम द मॉर्निंग। कभी कभी ऐसा होता है सर कि सुबह से लेकर रात तक मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, और मैं लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर रहा हूँ, सेमिनार्स कर रहा हूँ, वर्कशॉप कर रहा हूँ, क्लासेस कर रहा हूँ, ऐसे लाइव इंटरेक्शन कर रहा हूँ। मुझको ये फील होता है सर, और ये फैक्ट भी है कि 400 से 500, समटाइम्स 600, we are not using more than 600 words in our entire conversation। सुबह से लेके रात तक जो बात करेंगे 600 वर्ड्स होते हैं, 700 वर्ड्स होते हैं, मैक्सिमम 600। तो इतने वर्ड्स में हम लोग उन्हीं वर्ड्स को रिपीट कर करके अपनी कन्वर्सेशन को पूरा कर लेते हैं। तो बेसिक वोकैबुलरी की कोई बात नहीं करेगा, वो हमको आती है। तो प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम है कि आप स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो। प्रॉब्लम ये है कि हिंदी में सोच रहे हैं, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। यस सर। अब ऐसे में भी अगर देखा जाए सर, एक और मैं बताता हूं जो मैडम ने इनिशिएट किया था। मैं चाहूंगा कि मैडम उसको एलाबोरेट भी करें। आई एम नॉट वेरी एफिशिएंट अबाउट टॉकिंग अबाउट ऑर्गन्स ऑफ स्पीच,
लिंग्विस्टिक्स की मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन इसमें देखिएगा सर कि जो हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे टंग है, टीथ है, अपर पैलेट, लोअर पैलेट, जॉज है, हमारे थ्रोट है, नोज है, एंड इवन द साउंड कम्स फ्रॉम इनसाइड। नेवल के पास हमारे को प्रेशर पड़ता है, ये हमारी नाभि के पास में प्रेशर पड़ता है, तब साउंड बाहर आता है। ऐसी स्थिति में सर, अगर मेरे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच यानी मेरी जुबान मेरे ब्रेन के साथ में तालमेल नहीं रखती है, तो फिर छोड़ दो ना, इंग्लिश क्या, कोई सी भी लैंग्वेज, कोई सी भी लैंग्वेज। बहुत सारे जो फॉरेनर्स आते हैं, स्पेशली रशिया से आते हैं, हम लोग पास में सऊदी से आते हैं, दे आर नॉट वेरी गुड एट स्पीकिंग हिंदी। अब अगर वो नहीं बोल पा रहे हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इंग्लिश कठिन है, हिंदी सरल है, फिर भी नहीं बोल पा रहे, क्योंकि हिंदी नहीं बोल पाएंगे। सर प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी की भी बात करते हैं ना हम, 3 इडियट्स में वोकैबुलरी के ऊपर बहुत सारा ज्ञान ले चुके हैं। एक फिल्म आई थी चुपके चुपके, जिसमें हिंदी के बहुत सुंदर सुंदर वर्ड्स आए थे हमारे पास। सर हिंदी बहुत सुंदर लैंग्वेज है कि जब मैं मे आई गो एंड वॉश माई हैंड्स अगर ऐसा बोलूं की जगह मैं हस्त प्रक्षालन करके आता हूँ, सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है, हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो हम लोगों को दोनों एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि जो बेसिक वोकैबुलरी है वो हमको आती है। हम बल्ब को बल्ब ही बोलते हैं, हम लाइट को लाइट ही बोलते हैं, स्कूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इवन कार को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो जब मैं 60 to 70% अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये बात बोगस हो जाती है। केवल स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, कोऑर्डिनेशन ऑफ योर ब्रेन एंड योर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच इन दिस लैंग्वेज। हिंदी तो बहुत अच्छे से बोल लेते हैं ना सर। कभी ऐसा होता है सर कि इतना हम लोग, जैसे क्या हम लोग हमारी हिंदी को सही बोल रहे हैं? अब मैंने बोला बोल रहे हैं, और कोई साउथ इंडियन आता है वो बोलता है बोल रहे हैं, तो हम उस पर हंसने लगते हैं कि कैसे बोल रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा है, तो अगर कोई साउथ इंडियन आएगा वो बोलेगा कैसे बोल रहे हैं। एक्चुअली में द पर्सन इज करेक्ट, लेकिन चूंकि हम नहीं बोलते हैं इसलिए हमको ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है। तो इंग्लिश आती है बेटा, इंग्लिश तो आती है, केवल हमारा कोऑर्डिनेशन, ब्रेन और ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, इसमें थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे सर एक एग्जांपल और भी लेता हूं, ये लास्ट है। कौन से ऐसे सेंटेंसेस है जिसको आपको बोलने में कोई तकलीफ नहीं है? शुभम सर, may I ask you a question and you will have to give me an answer in English only. What's your name? Sentence. Shubham Srivastava. My name is Shubham Srivastava. That's it. My name is इसको Shubham बोलने में कुछ Srivastava. सोचना पड़ा? नहीं। हाँ, अब पूछेंगे ये तो आता है तुम्हारे को? सर एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा छोटा भाई रहता है पुणे में, अब मैं वहां पे गया तो हर अगला आदमी मराठी में बात कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे कोप करते हो यार, कैसे सारे लोग मराठी बोल रहे हैं, तुम कैसे करते हो? तो बोले कि मैंने एक सेंटेंस याद किया है, उसमें बोलता हूँ मला मराठी येत नाही, मला मराठी येत नाही। कोई मेरे से मराठी में बोलता है तो मैं उससे बोलता हूँ मला मराठी येत नाही। अब मालूम क्या चलता है, हर अगले आदमी से एक ही सेंटेंस बोल रहा है वो, मला मराठी येत नाही, मला मराठी येत नहीं। और चौथा पांचवा व्यक्ति ये बोलता है कितनी अच्छी तो बोल रहे हो यार, कितनी अच्छी मराठी बोल रहे हो। तो फिर बोलना पड़ता है बस अकेला यही सेंटेंस आता है मेरे को और कुछ नहीं आता है ना। याद करो, जो एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो याद करो। मे आई कम इन सर, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड मॉर्निंग मैम। इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। व्हाट्स योर फादर्स नेम बोल देते हैं, ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी, वहीं अटक जाते हैं। क्यों? हमने उसको इतना फ्रीक्वेंटली बोला ही नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेशन की बात है, नहीं आता ये तो गलत। सर सर एक स्टूडेंट ने हमारे साथ में लाइव ज्वाइन करा है, लेकिन उसके पहले जो कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो पहले एक कमेंट सेक्शन वाला क्वेश्चन में दोनों के लिए, आप दोनों के लिए ही आया एक्चुअल में, एक अनीश सर के लिए और एक दीपा मैम के लिए। तो पहला तो एक डाउट है, अब मेरे को नाम भूल गया, मेरे को वो पढ़ लिया था मैंने। कमेंट ये था कि लॉकडाउन अभी चल रहा है, कोरोना के टाइम पे आप क्या सजेस्ट करते हो कि हम क्या चीजें कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन पे काम करने, उसको इम्प्रूव करने के लिए? इस पे आप दोनों की एडवाइस। मैम टेक द कॉल प्लीज। Yeah. See, since you're in a lockdown situation right now and we are already interacting on a very electronic medium, ICT is something which has come into play very widely. I would suggest like take a call on joining some nice portals or
places where you can have knowledge exchange and where you have people who are interacting with you in English, and you have like-minded people who can do a lot of knowledge and language sharing. That's one part of the story. The second thing is indulge yourself consciously again into a good amount of writing and exchange of what you really want to speak. See, talking about movie is not something that you're looking forward for an interview, right? So when you're talking about your professional sphere, you really want to talk and master something which is pertaining to the knowledge sphere that you are already in. So it's always better that use language only as a medium and cultivate your knowledge, whereby utilizing the language skills to enhance the entire development of your career and professional goals. So which is what I would say, can be done very easily through the electronic mediums, which are very handy these days. Apart from that, if you're still feeling like to interact with people who are outside this world of social media and other places, you always have your contact list handy, and these days we have our smartphones. You can always land up into some kind of a voice chat with your people, develop some kind of a group conversations over various mediums, which are very handy these days again, or indulge yourself into writing some kind of a blog, which is also again a very good idea, because you get to have a lot of opinion related to your own work sphere. That's one part of the story, and then you get to practice a lot in your language. Yes, sir. Not audible, sir. एकदम सही है. Nothing much to add, मैम. जो कुछ भी कहा है एब्सोल्युटली वर्ड बाय वर्ड वो ही करना है. और मैडम एक और बात भी बताता हूँ मैं. अंजलि मैम, जब हम स्टूडेंट्स से बात करते हैं वो पूछते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर बात करें, तो इसको मैडम ने जैसा बताया, एक कहावत है, इफ यू वांट टू सक्सीड लिमिट योरसेल्फ. आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, वेरी गुड, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना है कि हम कौन से टॉपिक उठाएं. तो डेफिनेटली जो आपको आपके करियर में मदद करते हैं वही वाले टॉपिक्स उठाएं. सपोज यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आप टेक्निकल टॉपिक्स उठाएं. सपोज यू आर इनटू एमबीए, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स उठाएं. एंड देन बहुत हार्डली देयर आर सेंटेंसेस जिसको कनेक्टर्स के जैसे यूज करते हैं. अदरवाइज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑल दोस टेक्निकलिटीज इटसेल्फ. हम लोग प्रोफेशनल लाइफ के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं. लैंग्वेज भी हम इसलिए डेवलप करना चाहते हैं. तो इसलिए इधर उधर भटकने की जगह स्टिक टू योर सब्जेक्ट and have group discussions over the subject, so that will work out. बहुत अच्छे से काम करेगा सर. डेफिनेटली सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लाइव क्वेश्चन है. लाइव स्टूडेंट एक हमारे साथ में ऐड हो चुकी है, एंड ये चीज रखते हैं, मैं कमेंट सेक्शन से भी उठा रहा हूँ क्वेश्चन, उसका टेंशन मत लेना तुम लोग भी, ठीक है ना. तो नेक्स्ट स्टूडेंट ने हम लोग के साथ ज्वाइन करा है. वेलकम मुस्कान. Good evening to all the trainers. Hello, Muskan. हेलो. आप भी ऑडिबल? बोलो बेटा. Hope you all are doing great. So I have a query that how can we collaborate both on spoken skills as well as grammar issues? This is for sir or for me? Madam, you start with it. I'll just intervene. Muskan, could you repeat your question once again? Madam, what she is asking is, how can we make a balance between spoken English and grammar? I'm feeling that she is making a difference between spoken English and grammar, right? How can we get balance? See, Muskan, I'll deviate a little bit from your question and answer this, okay? So when we are talking about spoken English, there is no secluded skill that you can call as a spoken English altogether. Try and understand that, okay? Spoken English is just an outcome of whatever knowledge that you are sharing. The best part of English is it has evolved itself as a pidgin. Okay, you understand what is a pidgin? Pidgin is a lingua franca or a bridge language. Okay, English altogether was never a language by itself. Hindi is a language which has its own grammar.
we have all the indigenous languages, there are various languages, but then when we talk about English, the beauty of this language is it is very flexible. When we talk about grammar, grammar is just a structural aid to help you have a proper syntax to deliver whatever you are saying. So use grammar wisely. You need a very raw information about grammar. You needn't be an expert with grammar. Nobody in any interview is ever going to ask you the definition of a pronoun or a noun or adverb or adverbial or what is an idiom for that sake. For heavens, these are the things which are meant only to develop your concepts. So grammar is only meant to develop an idea about the order or the arrangement of the words which can give a very logical meaning to the sentence. Don't give it an importance more than that. What is more important is what information you want to put up. So once you start reading good, once you are listening good, your grammar goes already out of focus because you will be miming that information in that syntax only. It is only when you are going for your competitive exams, especially where you have verbal skills to be evaluated, we talk about your grammatical components, and that too only for the awareness sake. Okay, now even if you don't know all the components of grammar and you have been very good with your colloquial English and you have been all through speaking or writing in English, you would still be faring very well in the grammar component because your insight towards getting the right syntax of the sentence is already embedded in you. So it is not always required to focus very much on the grammatical side. This is actually a fad that our system, especially in India, has been brought up. We actually teach English in a grammar way, which is not the right way of teaching English as a second language. So you can possibly start thinking beyond that when we are talking about creating a balance between spoken English and grammar. The question itself is a misphrased one. You don't need to strike that balance. You really don't need to strike that balance. All that you need to focus is on what idea you really want to transmit and communicate. Am I through with this? ma'am. Yeah, ma'am. Right. Thank you so much, ma'am. Most welcome. देसी स्टाइल में लेते हैं Yeah. शुभम सर यस थोड़ा सा सर देसी स्टाइल में और ले लेते हैं इसका और जी, सबसे सर। पहले तो बोलूंगा कि मेरा भी सेम है मेरा भी सेम है ठीक क्योंकि है मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ इस बात से नहीं सर मेरा भी सेम करना है क्या है ये हाँ बिल्कुल मेरा भी सेम है करना क्या है मैडम ने बता दिया है अब जो नहीं करना है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश देखो इंग्लिश एक फैंटेसी जैसे ले रहे हैं हम लोग और किन लोगों से सीख रहे हैं हम लोग जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो इंग्लिश सही बोलें हम लोग उन लोगों से सीख रहे हैं मैं रिपीट करता हूँ हम लोग उन लोगों से इंग्लिश सीख रहे हैं जिनकी ये कतई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो करेक्ट इंग्लिश बोलें कि अगर शाहरुख खान आते हैं और स्क्रीन पे बोलते हैं माई सेल्फ शाहरुख खान तो मैं भी बोलना स्टार्ट कर देता हूँ और मेरे को 4 साल इंजीनियरिंग के लग जाते हैं जब मैं बच्चे को यही सिखा पाता हूँ माई सेल्फ मत बोलो भाई माई नेम इज या आई एम बोल दो राइट दूसरा यह है कि कहां से हम इंग्लिश सीख रहे हैं एक तो हम फिल्मों से सीख रहे हैं और अगर मेरी पूरी ही किस्मत खराब है तो कैंडिडेट मेरे पास में तब आता है जब उसने सारी इंग्लिश की मूवीज इंग्लिश में ही देखी होती हैं तब तो मेरे को बहुत तकलीफ होने वाली होती है क्योंकि जिस तरह की वो इंग्लिश बोलता है उसमें से 75% मेरे को फिल्टर करना पड़ता है क्योंकि वो पूरा 75% स्लैंग है हटाना पड़ता है तो उसके बाद नए सिरे से पट्टी पढ़ानी पड़ती है तीसरा एफएम से सबसे बेस्ट तो ये है इससे ज्यादा बेटर कुछ भी नहीं हो सकता तब मैं समझाता हूँ भैया ऐसा हिंदी इंग्लिश को मिक्स मत करो राइट तो हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से हमको नहीं सीखना है क्योंकि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आप उनका नाम भी नहीं ले सकते मैंने तो रेडियो पे ऐसे ही सुना है मैंने तो टीवी पे ऐसे ही सुना है मैंने तो फिल्मों में ऐसे ही देखा है तो यू नीड टू कट दैट ट्रैप ऑफ दैट्स इट ठीक है उसके बाद में क्या करना है दीपा मैडम ने शी वंडरफुली एक्सप्लेन्ड इट है ना तो केवल इतना करना है कि हम लोगों को वो बोलते हैं ना वो कबीरदास जी भी बोल गए संगत सही रखिए है ना तो अगर ऐसे लोगों की संगत रखते हैं जैसे स्कूल टीचर्स होते हैं ना देखिए आप उनकी इंग्लिश पढ़ाते वक्त बुक्स के हिसाब से गलत नहीं होती
जो बुक्स में इंग्लिश लिखी हुई है गलत नहीं होती, लेकिन अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं, आई एम सॉरी कि उसमें बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स आते हैं। फॉरेन मतलब जो इंग्लिश के नहीं है, वो हिंदी भी लिख देते हैं उसमें, वो मराठी भी लिख देते हैं उसमें, वो मुंबईया भी लिख देते हैं उसमें। तो हमको वहां से वो कैप पिक नहीं करनी, हमको मालूम होना चाहिए, लेकिन दैट्स नॉट रियल इंग्लिश। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, आफ्टर द लिसनिंग प्रोसेस आपको भी पता चल जाता है, और आप क्योंकि उन लोगों की संगत में है जो सही इंग्लिश बोल रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आपको इंग्लिश के स्ट्रक्चर सही आने लगेंगे। दूसरी बात, वेदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दैट मैटर्स। कैसे होता है कि अगर मैं ये पूछूं कि किसकी इंग्लिश अच्छी रहती है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की कि हिंदी मीडियम की, मुस्कान मैं अगर आपसे पूछूं? So according to me, like practice is must. Those who can बेटा speak इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम, शुभम सर आप क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी रहती है कि हिंदी मीडियम? सर मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि स्पोकन इंग्लिश मीडियम का अच्छा रहता है, एंड लैंग्वेज का जो नॉलेज होता है वो हिंदी मीडियम वालों का ज्यादा होता है। 110 ओ 100 Even I agree सच with बता रहा this. हूं मैं आपको कि आप अगर झांकी दिखाना है ना, तो स्टूडेंट लाइक मी Exactly. जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, आप उसको खड़ा कर दो और उससे बोलो कि इंग्लिश बोलो, तो वो बोल देगा। दूसरा मैं आपसे ये सवाल करता हूं सर कि आपके पास में कोई एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है और आपको ऐसा लगता है कि ये गड़बड़ है और आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के पास में ले जाते हो, पूछते हो उससे, यार ये सेंटेंस है मेरे पास में, इसमें गड़बड़ क्या है बताओगे क्या? तो वो सेंटेंस पढ़ता है और बोलता है तो नहीं है। ये तो गलत है, गलत है, गलत है। तो आप उससे पूछो कि ये गलत क्यों है, तो वो बोलता है कि वो मैं पढ़ रहा हूं ना तो मजा नहीं आ रहा, है ना। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के आंसर्स हैं ये, कि मजा नहीं आ रहा है, इसको पढ़ना है ना तो मजा नहीं आ रहा है। तो बोले अच्छा सही दे देगा, बोले हाँ दे दूंगा, तो बोले सही कर दे। तो वो जब सही करता है ना तो अराउंड 80 to 90% दे आर करेक्ट, वो सेंटेंस को सुधार के देते हैं तो वो दे आर करेक्ट। फिर आप उनसे अगला सवाल करो और वो गुस्सा हो जाएंगे, लिटरली गुस्सा हो जाएंगे। आप उनसे पूछो कौन सा ग्रामर का रूल लगाया, उसमें क्या सेंटेंस करेक्शन किया, उसमें आप ये बताना कि स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया, तो भड़क जाते हैं वो, तेरे को सही सेंटेंस चाहिए था, तेरे को दिया ना, बस डू हेल्प विद ग्रामर। तो ये अप्रोच है। तो इट इज ट्रूली सेड कि स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर को थोड़ा सा अलग अलग रखो। एक बार अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे, संगत सही रखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग बात कर, अननोइंगली होता है ये, सबकॉन्शियस माइंड में होता है, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो ग्रामेटिकल एरर कम हो जाएंगे। ऐसे ही वोकैब के साथ में भी है सर, कि अगर आप यानी बहुत हेवी वोकैबुलरी के साथ में शुरू करते हैं दिक्कत आएगी, लेकिन आप वोकैबुलरी, रिच वोकैबुलरी अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आप इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड उतना बढ़ नहीं पाएगा। अगर आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, आई लव द वे दीपा मैडम इज यूजिंग द वोकैबुलरी, बहुत मजा आता है मेरे को, इट इज वेरी मेलोडियस, बहुत मजा आता है मेरे को सुनने में। तो रिच वोकैबुलरी होना चाहिए, अच्छे शब्द आपके पास में होना चाहिए सर। मुस्कान, did you get your answer? Yes, sir, definitely. Thank you so much, sir. Right. Thank you, Guys, thank you. मैं Okay. जहाँ तक मैंने आपसे मेरे दो एक्सपीरियंस ट्रेनर Nazi to speak really good English or fluent English. You do not need to be, guys. Am I true or not, ma'am? Right. Absolutely. I mean, what is important is communicating your idea. Language is just a medium. So, and That's it. with English, I always feel that, you know, English जितना liberty आपको किसी और language में नहीं मिलता है. Linguistically, you know, English is one of the most accommodating languages. It has words from a plethora of languages all across the globe. The English dictionary is the fastest and the highest growing dictionary every year. Yes, It yes, grows yes, fatter yes. and fatter every year. And it is flexible with the dialectical differences also. We talk about English as a language which has been borrowed from the Britishers, but on the larger front, we fail to realize that even English has more than 800 dialects which have been already recognized. Yes, Okay, yes, very true. so English has taken a flavor wherever it has gone. So English is not a very limited language. Use it your way and make it a different language, and yet it remains English. That's the beauty of it. So when we are talking about developing English language skills, don't get phobic about using that language
focus on the information that you want to center on, what you want to share using the tool of English, and you will be doing very well with that language, developing your own style of English. Don't be limited by that idea that I'm not doing structurally very well, I don't have a very hefty vocabulary. You will develop that vocabulary depending upon the job sphere, the work sphere, or the interactive sphere that you are having over the period of time. And there are things that don't develop overnight. Vocabulary is just one of them. Very true, very true, very true. Thank you so much for this answer. I hope it must have helped the viewers really. Yes, sir. मैम कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कमेंट सेक्शन में आए, अब काफी सारे आ चुके हैं, तो गाइस सबका आंसर अब नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि टाइम भी सर खत्म हम होने लोग एक वाला है। काम और करते हैं शुभम सर, जी सर, जी सर। वी कैन हैव द सेशंस फॉर दिस वन, है ना, हम लोग इस तरह का कोशिश करते हैं, क्योंकि जो जी सर। क्वेश्चंस हमारे पास में आए हैं और हम लोगों के पास में कंपाइल्ड हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि सबके आंसर्स होना चाहिए। तो हम लोग Yes, ये sir. कोशिश करते हैं, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि यस दिस इज ओनली द समिट 1, तो हम लोग एक्सपर्ट्स को बुलाएं और इन बच्चों के साथ में इंटरेक्शन भी करें और इनको ओपन प्लेटफॉर्म्स दें। कुछ आप हमको भी गाइड कीजिए कि किस तरह से हम उन स्टूडेंट्स के पास में पहुंचते हैं, तो क्वेश्चंस Yes, हमारे sir. पास में आ जाएंगे तो वी कैन प्रोवाइड द आंसर्स आल्सो। तो जितना Yes, हमारे sir. पास में लिमिटेशन है उतने क्वेश्चंस तो ले लें, फिर उन क्वेश्चंस के ऊपर वी कैन हैव अनदर लाइव सेशन और वी कैन प्रिपेयर सम फाइल्स और वी कैन प्रिपेयर सम वीडियोस एंड प्रोवाइड इट टू देम। ओके ये सर। भी किया जा सकता है। और लाइव सेशन इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव, मैं आपको बोल रहा हूँ सर। कांग्रेचुलेशन शुभम सर, अंजलि मैम, बहुत बहुत बधाई हो कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। Absolutely. So we can continue with this one. Same here, sir. Sir, Thank you, sir. We all are obliged to hear wonderful, insightful words from both of you. don't say that. It's our pleasure. It's a pleasure indeed. We're grateful, ma'am. Thank you. Yes, Shubham. Okay. शुभम सर, सर एक क्वेश्चन आप और आंसर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल फिर हम लोग बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल। सेशन में जाते हैं। एक बार ना हाँ, पहले से please, पिक please, कर please. लिया था। ओके, जी, तो ये किसी स्टूडेंट का डाउट था कि दीपा मैम के लिए एक्चुअल में, कि इस टाइम पे ना जो सारा काम हो रहा है वो वर्बल कम्युनिकेशन से हो रहा है, नॉन वर्बल का कोई अभी है ही नहीं कुछ भी, लाइक, तो इस केस को कैसे डील करना चाहिए? I want this question to be a little more refined. What you want to say is, during the COVID times, we are only interacting over the various social media platforms. Is that what you want to talk? मैम 1 मिनट, मैं कोई मेरे आपको ख्याल से ये comment कहना चाह रहे हैं कि we have been talking about more about verbal communication rather than non-verbal communication. Ma'am, the question was, in verbal communication, how can you be assertive without body language? Without, we are all in virtual space now. It's all down to how we talk. See, using verbal communication is interesting. I mean, the subject that you have taken up is a little elaborate one. So I wouldn't say that, I'd be able to complete it in just one line answer to this. Developing an assertive communication through written communication is a completely different sphere altogether that we are talking right now. So when you're talking about using assertive language in written communication, there are words, there are styles of putting punctuations, there are ways we express through the sentence structure. And when we talk about casual communication in writing, again, we have signs, symbols, and these days we also have emojis and emoticons coming into display. So a lot many things come into play when we are talking about verbal communication through electronic medias these days. Simply talking about assertive communication in an essay form or something that you are documenting would be a different call altogether. Perhaps, Shubham sir, I would advise, you can take this as a separate note and we can have a separate session designed for this. The kind Okay, of ma'am. communication and the kind of word cultures that can be used for this, because this is an elaborate one, and I don't think that this can be really addressed only explaining it verbally. It could be No, better it done will with not be certain justified. examples. Definitely, ma'am. Yes, it won't be Definitely. justified. Okay. So you can keep a note of this question and we can address it in the forthcoming sessions sometime. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you so much, Anishar. Thank you so much, Deepa ma'am, for joining us today.
It was so It was a nice talking pleasure. to everybody. हाँ, बहुत अच्छा लगा. So we'd be looking forward कि हमारे पास में questions आए तो so that we can address the students and the candidates and aspirants. It was डेफिनेटली very सर. nice talking to you all. एक्चुअल में सर स्टूडेंट्स की तरफ से भी काफी अच्छा रिस्पांस आया है और Yeah. सभी ने कहीं ना कहीं एंजॉय करा है उस चीज को और सभी चाहते हैं कि दीपा मैम से अनीस सर से दोबारा से इंटरेक्शन होने का मौका उनको मिले. तो ये मैं नहीं बोल रहा है, बिल्कुल आप बिल्कुल बोल के जाएंगे आप ये स्टूडेंट्स को कि आप डेफिनेटली बिल्कुल we'll उनको be ये coming मौका back. देंगे. We'll be coming back. Surely we'll coming back. बिल्कुल आएंगे. Yeah, I'll be looking forward for more interactions like this and a lot more interesting and more focused and specific questions, I would say. Right. This Right. was more of an introductory session, I should say. So I look forward where people would be coming with more specific questions, more detailed ones, something that can really get you into insight. And we also get to learn a little bit on a very robust front. Thank you so very much. Thank you. थैंक यू सर. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Shubham sir. Thank you, Thank you. Anjali ma'am. गुड We are नाइट सर. looking गुड नाइट forward- मैम. Good night. Good night. Bye, bye, Yeah, ma'am. definitely. Bye. बाय Bye bye. Okay, guys. So आज के हमारा सेशन आई होप इट वाज रियली इंसाइटफुल एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज कहीं ना कहीं हम सबको पता है इंग्लिश बोलने में या लिखने में हेजिटेशन तो होता ही है. Even if we are grammar Nazis, even if we are studying in English medium since our childhood, still somewhere we feel that we have a bit, what do we call it? We're a bit scared to speak in English. We are a bit, laid back when we are talking about like, okay, present yourself in front of the whole crowd. So yes, so spoken English, confidence building, stage fear को हटाना matters a lot. But always remember that communication, I will say it again. Guys, ये सिर्फ एक art है. It can be easily developed and it can be learned. But English क्या है? English is a language. So हमको overall क्या focus करना है? हमको ध्यान देना है अपने communication को पहले सुधारने में. If we will be able to overcome the fears of communication, we will indeed be able to improve our English. So guys, English global language है, हमको सीखनी ही है in order to excel in our life. So let us stay tuned for the next session, guys. And we hope to hear from you again with some actually productive and good questions. So guys, that's all for today. Thank you so much. Have a wonderful day, people. एंड गाइस एक चीज मैं भी आपसे बोलना चाहूंगा कि इस टाइम पे हम लोगों ने जो क्वेश्चंस लिए थे, आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेश्चंस आए थे, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे और कुछ बिल्कुल ही इग्नोर करने वाले क्वेश्चंस आए थे. तो नेक्स्ट टाइम हम लोग टॉपिक वाइज सेशन करते हैं एंड आपकी तरफ से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि काफी अच्छे सारे क्वेश्चंस आए और उस पे फिर हम लोग पर्टिकुलर डिस्कशन करें. जैसा कि दीपा मैम का बोलना था, स्पेसिफिक टॉपिक आएगा तो स्पेसिफिक सेशन हो पाएगा और उसी का कोई मतलब भी होगा, राइट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आप आए, है ना? और इसके बाद अगर आपने एंजॉय करा है सेशन को तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी सेशन हो तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा. थैंक यू सो मच. गुड नाइट एवरीवन.